everyone. So we are discussing previous year questions of the chapter Molecular Basis of Inheritance and the topic the search for genetic material. In today's session, we are going to discuss a question which was asked in the CBSE board in different years in different forms. So the first type is long answer type question for 5 marks which was asked in the CBSE board All India Examination 2016. So the question is A part, describe the series of experiments of F. Griffith, comment on the significance of the results obtained. Then B part is state the contribution of MacLeod, McCarty and Avery. Then beta next type is long answer type question for 5 marks which was asked in the CBSE board Foreign Examination 2015. So the question is A part, describe the experiment which demonstrated the existence of transforming principle. Then B part is how was the biochemical nature of this transforming principle, determined by Avery, MacLeod and McCarty. Then beta next type is long answer type question for 5 marks which was asked in the CBSE board All India Examination 2015 and is also a NCERT exemplar question. So the question is A part, describe the various steps of Griffith's experiments that led to the conclusion of the transforming principle. And B part is how did the chemical nature of the transforming principle get established. Then beta last type is long answer type question for 5 marks which was asked in the CBSE board Delhi Examination 2015. So the question is how did Griffith prove transforming principle in genetics? Explain the procedure. तो बेटा इन सब क्वेश्चंस में हमें बेसिकली ए पार्ट में फ्रेडरिक ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल वाला एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन करना है और बी पार्ट में एवरी मैक्लॉयड मैकार्टी का बायोकेमिकल नेचर वाला एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन करना है. सो लेट्स चेक द आंसर. तो बेटा ए पार्ट ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल वाला एक्सपेरिमेंट, तो बेटा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया था फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने 1928 में. उन्होंने बेटा काम किया था एक बैक्टीरिया के साथ जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, जिसको हम निमोनोकोकस भी बोलते हैं और ये बैक्टीरिया बेटा निमोनिया कॉज करता है. क्लियर. अब इस बैक्टीरिया के 2 स्ट्रेन्स होते हैं, एस स्ट्रेन एंड आर स्ट्रेन. जो एस स्ट्रेन होता है वो वायरुलेंट होता है यानी वो निमोनिया इन्फेक्शन कॉज कर देता है और जो आर स्ट्रेन होता है वो नॉन वायरुलेंट होता है यानी वो निमोनिया कॉज नहीं करता. उसके बाद बेटा उन्होंने माइस लिया. जब उन्होंने माइस को एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया से इन्फेक्ट करवाया तो माइस मर गया ड्यू टू निमोनिया. और जब उन्होंने माइस को आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया से इन्फेक्ट कराया तो माइस नहीं मरा क्योंकि आर स्ट्रेन तो नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन है. उसके बाद उन्होंने एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को हीट कर दिया जिसकी वजह से बैक्टीरिया मर गया. उसके बाद इस हीट किल्ड एस स्ट्रेन से उन्होंने माइस को इन्फेक्ट करवाया तो माइस नहीं मरा. अब एक मरा हुआ ऑर्गेनिज्म थोड़ी ना इन्फेक्शन कॉज करेगा तो इसीलिए माइस नहीं मरा. पर फिर उसके बाद उन्होंने इस हीट किल्ड एस स्ट्रेन के साथ आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को भी ले लिया और इन दोनों ही बैक्टीरिया से माइस को इन्फेक्ट करवाया तो माइस मर गया. इससे उन्होंने देखा कि हीट किल्ड एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया ने आर स्ट्रेन बैक्टीरिया में कोई चीज ऐसी डाल दी जिसकी वजह से माइस फिर से मर गया. इसी बेसिस पे उन्होंने दिया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल. पर बेटा वो ये नहीं बता पाए थे कि ये जो चीज एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में गई है जिस वजह से आर स्ट्रेन में चेंजेस हुए हैं उसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वो है क्या. यानी वो ये चीज नहीं बता पाए थे ये जो ट्रांसफॉर्म हो रहा है उसका बायोकेमिकल नेचर क्या है. Clear? So beta A part transforming principle in 1928 Frederick Griffith in a series of experiments with Streptococcus pneumoniae, that is bacterium responsible for pneumonia, witnessed a miraculous transformation in the bacteria. During the course of his experiment, a living organism, that is bacteria, had changed in physical form. When Streptococcus pneumoniae, that is pneumonococcus bacteria, are grown on a culture plate, some produce smooth shiny colonies S while others produce rough colonies R. This is because the S strain bacteria have a mucus that is polysaccharide coat while R strain does not. Mice infected with the S strain that is virulent strain die from pneumonia infection but mice infected with the R strain do not develop pneumonia. Then beta Griffith was able to kill bacteria by heating them. He observed that heat killed S strain bacteria injected into mice did not kill them. When he injected a mixture of heat killed S and live R bacteria, the mice died.
Moreover, he recovered living S bacteria from the dead mice. He concluded that R strain bacteria had somehow been transformed by the heat-killed S strain bacteria. Some transforming principle transferred from the heat-killed S strain had enabled the R strain to synthesize a smooth polysaccharide coat and become virulent. This must be due to the transfer of the genetic material. However, the biochemical nature of genetic material was not defined from his experiments. Clear beta? देन बी पार्ट में हमें बायोकेमिकल नेचर बताना था, जो कि प्रूफ किया था ओसवाल्ड एवरी, कॉलिन मैक्लॉयड एंड मैकलिन मैकार्टी ने. उन्होंने ये पता लगाया था जो एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में चीज गई है उसका बायोकेमिकल नेचर क्या है. क्या वो प्रोटीन है, क्या वो डीएनए है, क्या वो आरएनए है. उसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने इन सारे बायोकेमिकल्स को एक्सट्रैक्ट कर लिया एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया में से और फिर उनको अलग अलग एंजाइम से रिएक्ट करवाया और देखा कि कौन से प्रोसेस में जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो अफेक्ट हुई है. तो बेटा जब उन्होंने प्रोटीन निकाला तो उसको रिएक्ट करवाया प्रोटीज एंजाइम के साथ, जिससे क्या हुआ, प्रोटीज एंजाइम ने प्रोटीन को डिग्रेड कर दिया. जिसके बाद उन्होंने देखा कि बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन अफेक्ट नहीं हुआ, अभी भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, जिससे पता चल गया कि प्रोटीन ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल नहीं है. उसके बाद जब आरएनए निकाला तो आरएनए एंजाइम से रिएक्ट करवाया तो उससे आरएनए डिग्रेड हो गया. तो अगेन ट्रांसफॉर्मेशन अफेक्ट नहीं हो रहा था, ट्रांसफॉर्मेशन अभी भी हो रहा था, जिससे पता चल गया कि आरएनए भी ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल नहीं है. पर जब उन्होंने डीएनए निकाला और डीएनए को डीएनए एंजाइम से रिएक्ट करवाया तो डीएनए डिग्रेड हो गया और इस टाइम पे ट्रांसफॉर्मेशन भी इनहिबिट हो गया, यानी रुक गया. यानी इस केस में ट्रांसफॉर्मेशन इफेक्ट हो रहा था, जिससे हमें पता चल गया कि जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है वो था डीएनए, यानी डीएनए ही हेरिडिटरी मटेरियल है. क्लियर बेटा? तो आंसर बी, बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल. प्रायर टू द वर्क ऑफ ऑसवाल्ड एवरी, कॉलिन मैक्लॉयड एंड मैकलिन मैकार्टी इन 1933 to 1944 द जेनेटिक मटेरियल वाज थॉट टू बी अ प्रोटीन. तो पहले हम लोग सोचते थे कि प्रोटीन है हेरिडिटरी मटेरियल. दे वर्क टू डिटरमाइन द बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इन ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट. दे प्योरिफाइड बायोकेमिकल्स, प्रोटीन्स, डीएनए, आरएनए एटसेट्रा फ्रॉम द हीट किल्ड एस cells to see which ones could transform live R cells into S cells. They discovered that DNA alone from S bacteria caused R bacteria to become transformed. They also discovered that protein digesting enzymes, that is proteases, and RNA digesting enzymes, that is RNases, did not affect transformation. So the transforming substance was not a protein or RNA. Digestion with DNAs did inhibit transformation, suggesting that the DNA caused the transformation. They concluded that DNA is the hereditary material, but not all biologists were convinced. So I hope this question is clear to you. Thank you.